ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਿਆਗਾ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर in the presence of magnetic field जिहदा फॉर्मूला तुहानू सारिआं नू याद हो गया दैट इज इक्वल टू F I L B sin थीटा ILB sin थीटा ਹੁਣ देखो मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है जी सपोज इस डायरेक्शन च करंट जा रहा है आई ते इस कंडक्टर दे अराउंड मैं इनवर्ड डायरेक्शन दे विच एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਐਂਗਲ ਹੈ between current and magnetic ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ एवरेज वेलोसिटी होगी वो की है फ्लो ऑफ चार्जेस है ना तो फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब की ਹੁੰਦਾ करंट ठीक है ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि what is the angle between magnetic field and current here 90 very good and ਜਦੋਂ 90 डिग्री ਦਾ एंगल बनता है उस टाइम ਤੇ फोर्स ਕੀ ਹੁੰਦੀ है maximum force very good maximum force which is equal to ILB ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ L ਲੈਂਥ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ दैट मींस ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ L ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ उस कंडक्टर चाहे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 90 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ force is a vector quantity ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਫਲੈਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਫਲੈਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਹੀ ਹੈ FBI फुल बेवकूफ इंसान बिल्कुल डिटो ही होए हुण आपां एक कि अगे अपना एक आर्टिकल करांगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ माइनस एक्स एक्सिस जरा माइनस एक्स एक्सिस श्योर है पक्का अब लगा के देखते नहीं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड करंट किधर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स किधर आ गई दैट इज -y बिल्कुल सही है जी ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ
Is it clear to all students? Yes, sir. Okay, done. चलो जी, नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज, इतने तो न्यूमेरिकल बहुत मिलणगे, फोर्स ऑन टू करंट कैरिंग parallel conductors in the presence of magnetic field. हाँ जी सुखप्रीत, आवाज सुनिए मेरी? हाँ जी सुखप्रीत जी, सुखप्रीत आवाज सुन रही है मेरी? हाँ जी प्रियंशु। यस सर। प्रियंशु अगर कोई साडे कोल करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर दे अराउंड की एग्जिस्ट करेगा? मैग्नेटिक वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड। कि उस मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है वो किहो जी होएगी? सर्कुलर। सर्कुलर, वेरी गुड। ਤਾਂ देखो पुराना कंसेप्ट ना भुल जाओ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਰਕਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਰਲਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੇਸ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ। मैं ए पार्ट लिख रहा करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो तुसी राइट हैंड साइड देख भी सकते हो, तुहानू दो कंडक्टर दिख रहे ने, वो दोनों कंडक्टर दे विच करंट दी वैल्यू अलग अलग है बट डायरेक्शन सेम है। हुण देखो असी इस सैटअप जिहड़ा साडे कोल दो कंडक्टर्स ने, इन्हां ते असी कोई भी बाहरों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, बाहरों कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लाया। आप देखते हैं कि जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर I1 है, करंट कैरिंग कंडक्टर I1, ध्यान नाल देखियो इस चीज नूं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर I1 करके इस दे अराउंड की बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैं इस कंडक्टर दी जिहड़ी ए वाली साइड है ना, मैं लिखदा लेफ्ट हैंड साइड तुहाडे समझण दे लई, ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ राइट हैंड साइड। तो मैनू तुसी बच्चे ये दसो कि करंट कैरिंग कंडक्टर जिहड़ा I1 है, ਉਹਦੇ करके जो राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की होएगी, इन होएगी या आउट होएगी? जल्दी, टाइम वेस्ट ना करो, फिर पता कि अपना लेक्चर की आर्टिकल थोड़ा जिहा चलूगा, लेंथी है, फिर अपने को टाइम शॉर्ट घट जाऊगा। नहीं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर करके राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड इन होएगा या आउट होएगा? इन सर, इतना हुआ ही नहीं। इन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जेडे बच्चे इन बोल रहे ने बिल्कुल सही है। देखो आ तुहाडे कोले करंट कैरिंग कंडक्टर है, ए दी राइट हैंड साइड है, करंट ऊपर जा रहा है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इन, दैट मींस इन वास्ते बच्चे मैं इत्थे की करूंगा, मैं क्रॉस लगावा। मैं थोड़ा जिहा तुहानू डायग्राम देख के एक गल क्लीयर होगी होनी कि असी देखो बाहरों तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कीता सी, इस करंट कैरिंग कंडक्टर करके एक मैग्नेटिक फील्ड बनया, वो मैग्नेटिक फील्ड किते अप्लाई हो गया? I2 ते, दैट मींस I2 ते फोर्स लगेगी इन दा, क्योंकि I2 जिहड़ा करंट कैरिंग है वो इन दा प्रेजेंस ऑफ की हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किदे करके बने? पहले कंडक्टर करके, ते दा नाम असी की रखांगे B1। मैं इत्थे लिख भी दिना है, B1 की है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर I1।
अच्छा ए साइड की ये इनवर्ड है ना ओके हुण I2 कंडक्टर ते आ जाओ ਜਿਹੜਾ I2 ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਏਗਾ सर आउट आउट वेरी आउट गुड बहुत अच्छे तब मैग्नेटिक फील्ड आऊगा आउटवर्ड आ देखो ए भी कंडक्टर की है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया देखो सानू बाहरों कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लगाने की लोड़ नहीं पई एक कंडक्टर दे मैग्नेटिक फील्ड ने दूसरे कंडक्टर दे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता जिहदे करके इहदे ते लगणीਆਂ फोर्सेस ते ये मैग्नेटिक फील्ड किहड़ा दैट इज B2 क्यों क्योंकि ये किहदे करके जनरेट होया I2 करके तो B2 बच्चे की है that is magnetic field due to I2 ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ ਫੋਰਸ ਔਨ देखो हैगे ही इनफाइनाइट कंडक्टर ने ठीक है ये इनफाइनाइट कंडक्टर ने दोनों ही इनफाइनाइट कंडक्टर ने ਅਸੀਂ कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी लेंथ L ਦੇ ਲਈ जे बच्चे मैं लिखा फोर्स ऑन कंडक्टर I1 जिहदे विचों करंट I1 फ्लो कर रहा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर I1 इज ड्यू टू हुण देखो I1 दे अराउंड केड़ा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करदा है B2 ਇਹਦਾ मतलब इत्थे जेड़ा फोर्स लगूगी किहदे करके लगूगी B2 करके द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर I1 इज ड्यू टू ਕੀ ਆਊਗਾ B2 तो फोर्स का फॉर्मूला की है मान लो ये फोर्स है ये F1 फॉर्मूला की होगा करंट I L B साइन होगा 90 देखो एक बारी इनवर्ड है एक बारी आउटवर्ड है एंगल तो 90 बनेगा तो साइन 90 1 होता मैं नहीं लिख रहा मैक्सिमम फोर्स लिख रहा है करंट केड़ा है I1 लेंथ L अच्छा मैग्नेटिक फील्ड केड़ा है B2 ये स्टेप देखो जी क्लियर है सारे आ स्टेप क्लियर होना जरूरी है फोर्स लग रही है पहले कंडक्टर ते किदे करके दूसरे कंडक्टर दे मैग्नेटिक फील्ड करके इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स Yes, sir. ओके डन बस फिर इस आर्टिकल च कुछ नहीं है जिन्होंने समझ लग गया ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 अच्छा हुण मेनू इनफाइनाइट कंडक्टर दा मैग्नेटिक फील्ड बोलो कितना सीगा देखते हैं कौन दसदा इनफाइनाइट कंडक्टर दा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i by r वेरी गुड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r r सपोज कर लो भी इन्हां दे विचकार दा डिस्टेंस है ऐदा तुसीं सपोज कर सकदे हो ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 1 ਚ put in 1 we get ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ that is F1 which is equal to I1 L okay अच्छा ਹੁਣ देखो B2 मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट केड़ा आऊगा ਇੱਥੇ आऊगा I2 ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ क्योंकि सेकंड कंडक्टर करके मैग्नेटिक फील्ड है ते सेकंड कंडक्टर जो करंट केड़ा फ्लो कर रहा है दैट इज I2 ता इनु सर ने इथे की वैल्यू जो पुट करांगे ता की बन जाऊगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन r तो बच्चे जी वैल्यू होगी दैट इज ए हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन r मैं इधर डिवाइड कर देना L दे नाल दैट मींस मैं की फाइंड कर रहा फोर्स पर यूनिट लेंथ देखो बच्चे ये तो आ गया मैग्नीट्यूड हुण गल आ गई डायरेक्शन दी तो हुण मैनूं डायरेक्शन दसो कि जेडे आ फर्स्ट कंडक्टर है ये ते जेडी F1 फोर्स लग रही है ओदी डायरेक्शन किधर वाल होएगी दे किहड़े स्टूडेंट डायरेक्शन नूं बिल्कुल सही दसदे देखो इस करंट कैरिंग कंडक्टर दे तुसीं फोर्स कैलकुलेट करदे हो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2 तो सोचो इस कंडक्टर ते जेडी फोर्स लगेगी जिहदी तुसीं वैल्यू कैलकुलेट कर ली ओदी डायरेक्शन किधर होएगी इनवर्ड नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव Negative एक्सिस
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस द राइट आंसर। देखो आप लगा के देखते हैं, आ करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चे बाहर आ रहे हैं तो FBI, ठीक है, ਤਾਂ मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर वाल रखांगे इदा, मतलब इस साइड इधर ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਪਵਰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਪਵਰਡ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, that is positive x axis। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ in this direction F1। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗੀ ਇਹ, along positive x axis। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਫੋਰਸ on current carrying conductor I2 ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇਗੀ, due to B1। ਦੇ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ F2, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ I2, ਲੈਂਥ L, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜਾ B1, ਤਾਂ F2 I2 L। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ B1 ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ I1, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬੋਲੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, that is mu naught upon 4 pi 2। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ I1 ਜਾਂ I2, I1 ਕਿਉਂਕਿ फर्स्ट करंट करके मैग्नेटिक फील्ड अपॉन की है R, तो F2 is equal to mu naught upon 4 pi पर यूनिट लेंथ में फाइंड कर रहे हैं, तो ये होगा जी अपने को I1 2I1 I2 अपॉन R। चेक करो कोई मैग्नीट्यूड च फर्क है, जो पहला असी फोर्स कैलकुलेट की सी ते हुण वाली फोर्स दे विच कोई मैग्नीट्यूड च फर्क दिख रहा है, आंसर है नो। तो बच्चे दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होणगियां, मैं आंसर भी बोलता। इहदी देखो डायरेक्शन कैलकुलेट देखो फाइंड करो, इहदी डायरेक्शन किधर होएगी, इस कंडक्टर ते जो फोर्स लग रही है डायरेक्शन किस साइड होएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव। देखो बिल्कुल सेम आप डिटो एग्जांपल आ लेती सी ना, देखो तुसी दस्सिया सी नेगेटिव एक्स एक्सिस वाल डायरेक्शन होएगी, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन है फोर्स दी वो इस साइड होगी F2। देखो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बच्चे सेम है, मतलब एक ही आऊगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट मींस आप कह सकते हैं F1 which is equal to minus of F2, दैट मींस ये न्यूटन थर्ड लॉ ਨੂੰ ओबे ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, एक्शन ਦਾ रिएक्शन है। इसे करके देखो हम थोड़ा जिहा मतलब समझना भी, मतलब की है, मतलब ये है बच्चे कि अगर तुहाडे कोले दो वायर्स ने जिन्हां चों करंट फ्लो करदे है ते वो करंट की है सेम डायरेक्शन च फ्लो कर रहे हैं, अगर तुसी दो वायर्स नूं एज इट इज रख दोगे तो उन्हां दे विच अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, उन्हां विच की पैदा हो जाएगी अट्रैक्शन। तो इत्थे आंसर मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन भी कई बार यह आउंदा हैगा कि अगर दो तुहाडे कोले पैरेलल कंडक्टर ने जिन्हां दे विचों करंट I1 I2 फ्लो कर रहा है इन सेम डायरेक्शन, तो उत्थे रिपल्शन होएगी या अट्रैक्शन, तो आंसर आऊगा उत्थे होएगी अट्रैक्शन। तो इसे करके तुसी देखिया होगा कि जिहड़ियां अपने मतलब स्ट्रीट्स दे विच उपर वायर्स आदि जांदी हुंदी ना, मेन वायर्स जिन्हां चों करंट फ्लो करदा है, तो उन्हां वायर्स विच ना डंडे लाए हुंदे ने, तां स्टिक्स लाई हुंदियां ने ताकि वो आपस दे विच की है कंबाइन ना हो सकन, जो कंबाइन हो जाएंगे तो की हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो हमेशा एक कंसैप्ट ध्यान च रखना है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, दो करंट कैरिंग कंडक्टर जिन्हां दे विचों सेम डायरेक्शन च करंट फ्लो कर रहा है, तो उन्हां दे विच अट्रैक्शन होएगी, दैट मींस एक वायर दूसरे वायर नूं अट्रैक्ट करेगी विद सेम फोर्स। देखो जी क्लियर, हाँ जी सर। ओके नैक्सट केस देखो, ये तुसीं हुण अपने आप करोगे, अपने अपने कॉपीज चको ते मैनूं ये करके दिखाओ। मतलब अगर करंट है, करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जो मैं बोल रहा उसदे तुसीं म्यूट लगा लो, ठीक है।
मेरी मैं देखो इत्थे मैं सॉल्व कर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੋ ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, अर्शदीप बार बार हैंड रेज कर देंदी, बोलती कुछ है नहीं है। इस साइड करंट I1, करंट I2, I1 करंट करके इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा उसकी डायरेक्शन होएगी इनवर्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B1, I2 करके जो इस साइड होएगा ये भी होएगा इनवर्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B2 ते जिहड़ी इहदी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर इस साइड लगेगी F1, ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मतलब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो करेगा तो वायर्स एक दूसरे को रिपेल करनगियां, एक्सप्रेशन ਤੁਹਾਡਾ बिल्कुल सेम आएगा, F is equal to mu naught upon 4 pi force per unit length 2I1 I2 upon R. R is the distance between conductors. दूसरा एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहेगा, that is mu naught upon 4 pi 2I1 I2 upon R. हाँ जी स्टूडेंट्स, किन्ने स्टूडेंट ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈ? कर रहे हैं सॉल्व? सब मेरी नहीं आई। ओके कोई गल नहीं, मैं दसूंगा जी, बिल्कुल दसूंगा। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।